Hello students, very good evening. As you know, already I started the class 10 science part of the chemistry and completed the chapter number 1 and 2, and chapter 3 is going on, and also completed the many topic in the chapter 3. Okay students, today our topic is the metal react with water. Okay, if you want you can write down your notebook metal. Okay students, metal react with the water. Today topic is the metal react with water. Are you getting? If you have any doubt, you can leave the comment in the comment box, or you can WhatsApp it. Okay students, if you want to get the PDF, join the Telegram channel. Write in the search bar, Telegram search bar @science Sandeep ID will come and you can join it. Also you can join the Instagram with this ID and you can got the many short related to the your topic, short videos, you can say type of the reel. Okay, so you can join Telegram and Instagram ID. Okay students, let's start today topic. Okay, today our topic is the metal react with the water. That means how to metal react with the water, and when it will be react, what will be happen. Everything know about this reaction. Okay students, first thing is the metal oxide are first thing is the metal this is the metal. I'm writing the template of the reaction. Okay, metal, and I'm telling metal react with the water, so I'm taking water. Okay students, metal and water react, both are react and formed as a product metal oxide. Okay students, metal and water react and form what? Metal oxide, and also release the hydrogen gas. Okay students, but one thing is remember, but all metal students, but all metal do not react with water. Okay, are you getting? All metal do not react with the water. Some metals are react only with the water. Some metals react with the cold water, some metal react with the hot water, some metal react with the steam. Okay students, let's come to start one by one everything. Okay, first we are going to taking the sodium and potassium. Already told yesterday classes and last classes that about the sodium and potassium. Sodium and potassium is the very soft metal like sodium, potassium, lithium. Okay, and this group of the all elements are very soft and you can cut with the knife. Okay, already explain it about this. So these metals are very soft, so this element are very soft, so this one react with the cold water and formed metal oxide and release the hydrogen gas, and देगा काफी साउंड के साथ करेगा, वॉलेंटली करेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे कैसे करता है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और ये फायरेबल होगा. यहाँ पे जो है फायर भी हो सकता है इसके रिएक्शन होने की वजह से. देखिए कैसे, let's take sodium. This is the sodium and it will be react with the water. Okay, cold water. Okay students, I am writing here the cold water. Okay, and form it sodium hydroxide and release the hydrogen gas
also energy. Okay students, also release the energy. देखिए आपका पोटेशियम, ये भी आपका सॉलिड है, ये भी आपका वाटर से, आल्सो दिस वन रिएक्ट विद द वाटर, विद द कोल्ड वाटर एंड फॉर्मेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. Okay students, and formed hydrogen gas and also lose the energy. This is the sodium hydroxide, this is the sodium hydroxide, this is the potassium hydroxide, this is the potassium hydroxide, this is the hydrogen, already you know that. This is the sodium, this is the potassium, already you know about that. Okay, if you want you can write down the name of the sodium, potassium and water. Okay, got it. ये यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन सोडियम और वाटर, सोडियम जो वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और एनर्जी रिलीज करता है. ऐसे ही पोटेशियम और वाटर जो है आपका रिलीज करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और एनर्जी यहाँ पे रिलीज करता है. यहाँ पे क्या होता है, फायर हो सकता है. यहाँ पे ये रिएक्शंस को बोलते हैं कि काफ़ी जो है वायलेंट रिएक्शन है. इस रिएक्शंस को बोलते हैं रिएक्शन काफ़ी वायलेंट है. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फायर कैच फायर होता है. फायर यहाँ पे हो जाता है क्यों, इसी बात आप सभी समझ गए होंगे. ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम. Calcium also react with the water and formed calcium hydroxide and hydrogen gas. But what is the difference between the both and the calcium? क्या अंतर है इसमें और इन दोनों में, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम के रिएक्शंस में वाटर से क्या हो जाता है, इट इज़ लेस वायलेंट. ये जो कैल्शियम है जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो लेस वायलेंट होता है. और यहाँ पे देखिए एनर्जी जो है सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी रिलीज नहीं होती है ताकि यहाँ पे फायर हो सके. ये आपका हाइड्रोजन जो है फायर यहाँ पे नहीं हो पाता है, कैच फायर नहीं करता है. यानी हाइड्रोजन में जो है फायर, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे फायर नहीं होता है क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी ना वो बहुत लेस क्वांटिटी में सब जो है सफिशिएंट नहीं होगी फायर होने के लिए. कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे एक मान लीजिए कि मैंने ले लिया क्या, कैल्शियम ले लिया और यहाँ पे वाटर ले लिया. ओके स्टूडेंट्स, ये वाटर ले लिया और ये वाटर जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे H2 जो है रिलीज करेगा. यहाँ पे एनर्जी निकलेगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं निकलेगा, एनर्जी यहाँ पे निकलेगा लेकिन आपका फायर नहीं होगा. हाइड्रोजन गैस जो एनर्जी के साथ मिलकर फायर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज हो रहा था तो यहाँ पे कैच फायर नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, इतनी सी बात आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी. इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम जो है, यहाँ पे जो है कैल्शियम क्या हो जाता है, तैरता है. यहाँ पे क्या है, कैल्शियम जो है तैरता है. कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन फॉर्मेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट मीन्स कैल्शियम. यहाँ पे जो है क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है कैल्शियम के सरफेस के ऊपर जो है चिपक जाता है और जिसकी वजह से कैल्शियम यहाँ पे क्या करता है, तैरता है. ये भी बात आप लोग याद रख लीजिएगा. अब लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट स्टिक द सरफेस ऑफ द कैल्शियम आर यू कैन से मेटल. ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम क्यों उतरता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. ओके नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस कर लेते हैं. यहाँ पे ये तो कोल्ड वाटर के साथ हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ हो गया. अब आइए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हॉट वाटर के साथ देखते हैं. लिखना है तो लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी. ओके इरेज करते हैं. पहले ही मैंने बोला था सारे मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना. यहाँ पे हमने मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे वाटर ले लिया. ये आपका कौन सा वाटर है, हॉट वाटर है. ये भी रिएक्ट करके सेम चीज़ बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर से ये रिएक्शंस होगा. क्यों हॉट वाटर से रिएक्शंस होगा,
बताइए, कोल्ड वाटर से क्यों नहीं रिएक्शंस होगा? जब इसमें आप कोल्ड वाटर डालेंगे ना, जब कोल्ड वाटर डालेंगे तो रिएक्शन होगा, काफ़ी स्लो रिएक्शंस होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का जाकर के लेयर बन जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन रुक जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। यदि सपोज कीजिए आप इसमें कोल्ड वाटर डाल दिए, ठंडा पानी इसमें डाल दिए मैग्नीशियम में, रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्शन होते होते आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लेयर बन गया चारों तरफ, और रिएक्शंस चारों तरफ लेयर बन जाएगा, और जो कोल्ड वाटर है उस लेयर को तोड़ नहीं पाएगा, जब तोड़ नहीं पाएगा तो उतना ही जो है रिएक्शंस रुक जाएगा, ठीक है। और जब उसी कोल्ड वाटर को थोड़ा सा गर्म कर देंगे बाहर से, तो वो जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेयर को तोड़ देगा, वो गर्म पानी हॉट वाटर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरह से बन जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ गए होंगे अब मेरी बात, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, 2 to 4 जो है आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर है, आप लोग जानते ही हैं, और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज होगा। इतनी बात समझ गए। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, मैग्नीशियम फ्लोटिंग करेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नीशियम फ्लोटिंग करेगा, यानी मैग्नीशियम यहाँ पे पानी के ऊपर तैरेगा। क्यों तैरता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का बुलबुला, सॉरी यहाँ पे मैंने H2O लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, एक गैस है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन का बुलबुला निकलता है यहाँ पे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का जो है क्या करता है, जा करके मेटल के पास, मैग्नीशियम के पास चिपक जाएगा उसके सरफेस पे, जिसकी वजह से मैग्नीशियम यहाँ पे आपका तैरेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ओके, और कुछ है, जैसे कि कुछ जो है मेटल है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और ये आयरन हो गया, ये तीनों जो है आपका कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, एक ही से रिएक्ट करेगा, स्टीम से रिएक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे रिएक्ट करके हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ले लिए एल्युमिनियम और यहाँ पे ले लिए क्या, स्टीम ले लिए, ठीक है, स्टीम ले लिए, स्टीम यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे, क्योंकि अब ये लिक्विड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप देखिए क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, Al2O3, ये सब रिएक्शन पहले मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाता ही बनाता है, आप सभी जैसे कि जानते हैं। और ये कौन सा मीडियम है, एक्वस मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम लगा लिए, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे चलिए 3 लगा लेते हैं, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 3s2 लगा लीजिए। देखिए आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और मैंने यहाँ पे बताया था, ऐसा जब भी होता है रिएक्शन, तो एल्युमिनियम जो है इसके ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोटिंग करता है। क्यों तैरता है, हाइड्रोजन जो है इसके सरफेस पर जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो तैरता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, यदि मैंने आपको क्लियर कर लिया। और स्टीम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे ए लिख लीजिए। ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ ये सारे रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे आयरन को ले लेते हैं। देखिए आयरन आपका हो गया सॉलिड, और यहाँ पे आपका लिख लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका वाटर। एक क्या होगा, गैस होगा। गैस क्यों लिख रहे हैं वाटर के पास, क्योंकि यह स्टीम है, आपका लिक्विड नहीं है, नहीं तो एल लिखते, ठीक है। रिएक्टर का क्या बनाएगा, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड प्लस यहाँ पे देख ही रहे हाइड्रोजन, यहाँ पे रिलीज होगा। अब इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे, 2 वहाँ पे Fe है और 3 यहाँ पे आपका क्या है, वाटर 3 लिख लेंगे, 6 यहाँ पे भी 3, सेम जो है उसी की तरह ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो रहा है, नहीं बैलेंस हो रहा है ना, क्यों, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 आयरन, ठीक है।
Fe2 नहीं होता है ना, यहाँ पे देखिए Fe3O4 होगा। अब बैलेंस कीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 3 होगा, अब यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4s2। ये क्या है आयरन ऑक्साइड है। ये सारे ना तैरेंगे, क्यों? हाइड्रोजन के जो बबल बनते हैं ना, ये आयरन के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये तैरने लगता है। ठीक है, इनको तो इसे याद रख लीजिएगा। अब वहीं ये एक और बात है यहाँ पे, एक और क्या बात है स्टूडेंट्स, एक और बात ये है कि ये दोनों एल्युमिनियम और आयरन जो है, या जिंक का भी कराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका जब कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं किए, वहीं जो मैंने ऊपर बताया था, कोल्ड और हॉट वाटर से जब इनको रिएक्ट कराएंगे, कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्शन तो होगा, लेकिन जाके उसका लेयर बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जो है जा करके बन जाएगा, और वहाँ से आगे लेयर्स जो बन जाएगा, और फिर रिएक्शन जो है रुक जाएगा और आगे नहीं होगा। जब ही स्टीम से जब कराएंगे ना, ये लेयर टूट जाते हैं और जाके फर्दर जो है आपका क्या हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बात है, मैंने जो है आज आपको बता दिया कि मेटल कैसे जो है वाटर से रिएक्ट करता है। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।